नमस्कार दोस्तों। एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम सब बिजनेस तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हों चाहे एमएसएमईज हों। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम जो सभी कॉमनली फेस करते हैं वो है फंड्स की। फंड्स के लिए हमें कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, या बैंक्स के लिए, एनबीएफसीज के लिए कितना डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके कॉम्प्लायंसेस हैं, उनके केवाईसी स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये सब अब सरकार की तरफ से भी बहुत रिलीफ हुआ है। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि स्टार्टअप्स को कितना प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में। तो ये सब, जैसा कि हम अभी अपने पिछले एपिसोड में भारत के आजादी के 100 वर्ष की बात करते आ रहे हैं कि भारत 2047 में कैसा होगा, उस और हम जो ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं हर बिजनेस में, हमारी एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो सरकार की तरफ से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, बढ़ता जा रहा है, फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं। तो उन्हीं सब बातों का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और हमारे साथ गेस्ट स्पीकर के रूप में जुड़े हैं मिस्टर सुमेश कुमार जी। सुमेश जी, आपका हमारे आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनबीएफसीज की। एनबीएफसीज की किस तरह से बिजनेसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्या उनके नॉर्म्स हैं, कैसे उनके साथ कोलैबोरेट किया जा सकता है, क्या क्या आप लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो भी हम बात करेंगे, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे। आज हमें इन सब बातों का जवाब देंगे हमारे गेस्ट स्पीकर मिस्टर सुमेश जी। और प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर द्रव्य से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे गेस्ट स्पीकर के इंट्रोडक्शन के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करें। Thank you, Mr. Arora. Mr. Kumar is an experienced professional with over 13 years in steering business, finance, and international legal affairs across the banking, financial services, and insurance sector. He is also a member of the Institute of Company Secretaries of India, and he is an advisor in the Banking and Finance Committee at FII. We welcome you, Mr. Kumar, to the show. Thank you, Dr. Dhruvajan जी। आपकी इंट्रोडक्शन तो मैंने रीड आउट कर दी सबके सामने, बट वी वांट टू नो द पर्सन बिहाइंड द प्रोफाइल। तो आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा शेयर करें प्लीज। Nothing as such a big journey, ma'am. It's only 13 years in the service corporate sectors, working with banks, NBFCs, insurance companies very closely. Maybe I'm previously on the roles of NBFCs, but worked with banks very closely in launching many lending products, insurance products also. So like that, affairs also related to outside India, some of MNC's affairs, launching business in Middle East, also helping their other products also. So it's the journey. It's a continuous one, ma'am, and enjoying it from last 13 years. But prior to that, I was also, I will say that more towards academics, but athletics also. But this journey is still the same, athletic academics. But yes, enjoying very well because दोनों चीजें साथ चलना चाहिए. That's all. So, Mr. Kumar, what is the current landscape of MSME credit in India, especially post-COVID? Landscape is like a scenery, ma'am, right? And actually, it's a very interesting question you have asked about, MSME credit, that whether they are able to get funds or not from the industry. Industry means bank, financial institutions, and PFCs, especially after pandemic time, right? If you see that vision of Indian government is Viksit Bharat, right? That is to be achieved by 2047. This is not alone be achieved by MSME or by the industry or by the financial institution or by the government. All need to be participate equally. सबका सहयोग ही विकसित भारत बना सकता है। ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगा चेंज हुआ है और कम भी नहीं कहूँगा कि कम चेंज हुआ, बट इट्स एन टारगेट विच कम्स आफ्टर 2 decades. So अचीव होना मुश्किल है, लैंडस्केप बदलना भी मुश्किल है, बट नथिंग इज सब्सटेंशियली, I will say, not possible. It's possible, but after pandemic, rules are the same. That banks are behaving in the same manner. That how stringently they are doing credit credit. I will say assessment of the MSMEs
whenever they go for the loans, they take time. This is a continuous journey. Though government of India is already improvising further the landscape, which is visible for the MSMEs, various schemes, guarantee schemes, कि आप लोन ले लीजिए, गारंटी हम लेते हैं. So government is on the better side. I will not say. But main problem is that these schemes are not actually coming down towards the, I will say tier 3, tier 4, or maybe in the rural areas. Still, many MSMEs are not aware of these schemes. So bank is still stringent on compliance frameworks, insufficient borrower credit history. Like if you see many micro units or the micro enterprises, small enterprises, startups, or maybe many other similar nature works in rural areas, but their credit history is not possible or maybe not visible. So these are the key challenges that banks are still stringent on these sides. They are not able to carry out due diligence, either the inventory of the MSME, उनका inventory कहाँ रखा है, अगर किसी के पास कोई सेकेंड हैंड कार डीलर है उसका स्टॉक कहाँ रखा है, रोड के उस साइड आधी गाड़ियां मिलेंगी, रोड के उस साइड आधी गाड़ियां उस साइड मिलेंगी, बट बैंक्स फील अनसेफ. So they are very stringent about stock audits also. But new revolution came after the pandemic. Everyone is enjoying the revolution. We are also enjoying. We are not were busy face to face conducting this webinar or the seminar, the podcast, whatever you say. But pandemic changed a lot. New revelation is coming that is related to fintech, that many people can apply loan online, whether this is MSME or as a proprietor also related to MSMEs. So they can apply online. So faster underwriting, faster assessment of loan file is visible through system, and they can quickly take a decision. This is one thing that many platform games for the MSME lending. And these MSME lending are particularly comes from the NBFC side only. So these apps are driven mainly by the NBFCs only. So that is the one positive outlook that how we can achieve the target of Indian government, that is Viksit Bharat by 2047. सुमेश जी, एमएसएमईज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्रेडिट अप्लाई में, उनकी डॉक्यूमेंटेशन, सिविल स्कोर, स्टॉक्स, ये सभी चीजों को लेकर आती है जो कि प्रॉपर मेंटेन नहीं होता. तो ऐसे में एनबीएफसीज किस तरह से हेल्पफुल हैं, किस तरह से उनका ईज ऑफ जो लोन है वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, compliance framework for the banks is very stringent, and NBFCs are those who are changing their loan products for the MSMEs. बहुत Okay. अच्छे से कस्टमाइज कर लेते हैं. अगर बोलते कि नहीं हमें लोन इतना चाहिए तो बोल देते हैं हाँ इतना मिलेगा आपको, या फिर थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन को कम करते हैं. और आप एमएसएमई गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे भी एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, नो योर लेंडर ग्रो योर बिजनेस. वहां पे उन्होंने सिंप्लीफाई किया है गवर्नमेंट ने. जी. बट एनबीएफसी का मेन जो मेरे को लगता है कि दे ऑपरेट इन डिजिटल मोड, हाइब्रिड मोड, और वो उनमें वो है क्षमता कि वो नीचे रूरल एरिया तक जा सके, बॉटम ऑफ द पिरामिड, फ्रॉम सिटी टू डाउन, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू ग्रो. Okay. They are private. Some of NBFCs are private, some are linked to PSUs also. But these NBFCs take less of the time. They can take decision also very well. अभी एक लास्ट ईयर आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट में भी लिखा था कि दैट बैंक्स के लिए एमएसएमई रूल चेंज हुए हैं. 14 दिन के अंदर वो उनको एप्लीकेशन अप्रूव करनी पड़ेगी, लोन की एप्लीकेशन अप्रूव करना ही करना है. That is one thing. But NBFCs are very, very fast in these terms. And because they want to grow the business, they want to know the business of MSMEs, and many NBFCs are available, but still NBFCs are developing themselves so that they can equally come in the front of the banks. Okay. Major challenges यही है sir, but there are n number of challenges. सुमेश जी, एमएसएमई पोर्टल पर भी एक लाइन है, नो योर लेंडर ग्रो योर बिजनेस.
एक्चुअल में गवर्नमेंट जो आजकल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स चला रही है या कॉम्प्लायंसेस की बात कर रही है, तो इस लाइन का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज या क्या क्या गाइडेंस दी गई हैं? देखिए, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। इस वेरी लेंथी डॉक्यूमेंट अराउंड 80 पेजेस, बट जी। ministry also tried, or government also tried to simplify the RBI regulation through that document. How lender can match himself with the MSME and vice versa. That is an objective in simplified languages. But that Right. language says that whenever you meet, whenever you know your lender, then you should check all these points. One of the checks is that interest rate are in floating basis or the fixed basis. आरबीआई की रिसेंट गाइडलाइंस जो अभी आई है, रिसेंट इसी मंथ ही आई है, आई थिंक, जो प्री पेमेंट्स पे पेनल्टी लगेगा नहीं लगेगा। आप प्री पेमेंट करने जाते हो फिर भी पेनल्टीज आप देते हो, या फिर आपको फीस देनी पड़ती है, उसके ऊपर एक रिलैक्सेशन आया है। डिलेड चार्जेस अभी रिसेंटली 1 और 2 ईयर्स में बोला कि आप पहले बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में बोलते थे 2% फॉर द डिफॉल्टिंग पीरियड यू विल पे एक्स्ट्रा इफ यू डिफॉल्ट इन द पेमेंट्स। सो आरबीआई ने उसको भी सिंपली किया फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग एमएसएमईज, एवरी काइंड ऑफ बोरोवर, दैट पर डे यू नीड टू क्वांटिफाई इट, 25 रुपए पर डे, 30 रुपए पर डे, सो दैट ए real number is visible for the MSMEs, I will say. Similarly, loan secured है, unsecured है तो भी लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बजट also mentioned MSME is the second highest pillar. They increase the unsecured limits also. कईयों ने बोला कि कम मिल रहा है, अभी ज्यादा चाहिए, तो they are giving money to banks, financial institution through SIDBI also, through NBFCs also, credit schemes. These are coming. These are all mentioned in that document. But they have smartly added these things related to RBI norms in that document in very plain languages. So that I will say it's a unique document that every MSME should study it, thoroughly go through it, and उसका बड़ा यूज है मेरे हिसाब से। मतलब जनरली एक एमएसएमई जो है वो इतना पेन नहीं लेता कि वो इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट इसको रीड करे। वो तो उनको बोला जाता है कि यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, वो हर जगह साइन कर देते हैं। बट एंड ऑफ द डे जब वो प्रॉब्लम में फंसते हैं तो तब उनको रियलाइज होता है कि हमने क्या साइन किया था, क्या नहीं किया था। उनको रूल्स के बारे में ही नहीं पता होता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने बोला कि लिमिट्स के ऊपर बात की, ये सिडबी की बात की, उद्यम की हम बात करने वाले हैं। मतलब जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एनबीएफसीज हैं, यहाँ पे लिमिट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो लिमिट्स हैं कहाँ पे? उसके लिए किसको अप्लाई, कहाँ अप्लाई करना है? क्योंकि 99% लोगों को वो रास्ता ही नहीं मिलता। अक्सर लोग मीडिएटर के थ्रू अप्लाई करते हैं तो बहुत बार मिसगाइड हो जाते हैं, या उनसे जो मीडिएटर होते हैं ह्यूज कमीशंस मांगते हैं। तो और एक्चुअल में वो लिमिट्स और वो एप्लीकेशन की ईज ऑफ एप्लीकेशन स्टिल, जो चाहे वो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसिलिटेट कर दिया है या आरबीआई ने अपनी पॉलिसीज में चेंज किया है, लेकिन वो एक एंड यूजर तक, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वहां तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। तो इसके लिए आप हमारे ऑडियंस को सॉल्यूशन दें कि बीइंग एफआई एडवाइजर, आप जो फाइनेंस एंड बैंकिंग कमेटी के एडवाइजर हैं, तो एफआई कहाँ तक हेल्पफुल है एक आम एंटरप्रेन्योर और एमएसएमई के लिए? देखिए संजीव जी, मैं इतना ही कह सकता हूँ अभी तो, कि चैलेंजेस तो आएंगे विकसित भारत में, बट उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपका जो ये प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मैंने भी अपनी सेवाएं देना शुरू कर रखा है एज एडवाइजर, एज ए बैंकिंग एंड जी। फाइनेंस कमेटी, ताकि हम एमएसएमईज को हेल्प कर सकें। जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ, इसीलिए आप यहाँ पे, हमारा मंथन चल रहा है अराउंड एमएसएमईज। जी। कई सारी पहलू हैं कि लिमिट्स कितनी है, कैसे बढ़नी चाहिए। अब मेरा खुद का भी मन था कि मुद्रा लोन के बारे में मैं बात करूं, शिशु लोन,
किशोर तरुण 50,000 रुपए अर्ली स्टेज के ऊपर एज ए शिशु लोन तो एक संयम लिमिट नहीं दिख रही आज की डेट में। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इंडस्ट्री के थ्रू, एफआईआई इंडस्ट्री के थ्रू आगे जाया जाए। एफआईआई इज द one of the best platform to highlight these issues that these limits can be increased at least for शिशु लोन, किशोर लोन। किशोर लोन 50,000 से 5 लाख रुपए मिल रहा है फॉर ग्रोइंग द बिजनेस। बट एक्चुअली एमएसएमईज नीड मोर मनी इफ अगर आप पिरामिड के नीचे तक जाओगे। तो उसमें जो आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी अपना सेवाएं दे रहा हूँ, और जितना इसको और अवेयरनेस के थ्रू जितना हम क्रिएट कर सकते हैं एमएसएमईज के लिए उतना करेंगे। बट one session is not sufficient or one representation is not sufficient, but continuous awareness is required for the MSMEs। डेफिनेटली वो डेफिनेटली। वो आपके थ्रू भी आ सकती है और बाहर गवर्नमेंट के थ्रू भी आ ही रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। ये तो मैंने एक लिमिट का एग्जांपल दिया, बट ऐसे तो बहुत सारे लोन्स आ रहे हैं। सीतारमन जी ने खुद बोला, निर्मला सीतारमन जी ने खुद बोला कि हम और भी लेके आ रहे हैं लिमिट्स आपके लिए, अनसिक्योर्ड लिमिट्स लेके आ रहे हैं, हम गारंटी ले रहे हैं। बट वो गारंटी के लिए मेरे हिसाब से एक अलग से ही एक पूरा टॉपिक बन छिड़ जाएगा कि अगर गारंटी दे रहे तो कितनी गारंटी दोगे। बीइंग एफ आई आई जी। एडवाइजर फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस कमेटी, आई कैन से कि कमेटी पूरी तरीके से काम कर रही है एमएसएमई की रिजोल्यूशंस के लिए, बट रेगुलर इंटरेक्शंस में है। उनकी जो रिकमेंडेशंस आती हैं कि लैंडिंग को कैसे इजी किया जाए, उसके लिए बहुत सारी एनबीएफसी से ऑलरेडी कांटेक्ट में है एफआईआई, अपना रिप्रेजेंटेशन भी दे रही है एट अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म्स। लेकिन एक जो नई पहल है कि हमेशा एफआईआई आगे रहती है, नए लॉज क्या आ रहे हैं, कैसे ये लैंडस्केप चेंज होगी। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आरबीआई नया को लैंडिंग प्रोग्राम लेके आ रही है, नई गाइडलाइंस आ रही हैं कि बैंक कंफर्टेबल नहीं है या फिर बैंक कम कर रहे हैं तो एनबीएफसी को भी अपॉर्चुनिटीज दी जाए कि दोनों साथ मिलके काम कर सकें। तो उन जो गाइडलाइंस आ रही हैं उन पे ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। एमएसएमई को बता रहे हैं कि अगर बैंक से आप डायरेक्टली नहीं जा सकते तो एनबीएफसी के थ्रू जाइए, लेकिन रेट बैंक वाला ही मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि बैंक के स्टैंडर्ड है, बैंक के पास कैपिटल है, बैंक के पास कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, लेकिन जो बिजनेस की झील है वो एनबीएफसी के पास है। तो ये एक बहुत बढ़िया प्रावधान है हमारी तरफ से कि एफआईआई इसमें बहुत काम कर रहा है। एमएसएमई को और चाह रहे हैं कि आगे आए, अपना बताएं। आरबीआई की एक और पहल हुई है स्टार्ट कि आप रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में आके अपनी डिजिटल लैंडिंग एप्स को टेस्ट कर सकते हो। पिछले वर्ष में देखा जाए तो एमएसएमई करीब 22 डिजिटल लैंडिंग एप्स आई हैं, उनके ऊपर भी रिप्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते एमएसएमई को पैसा नहीं मिलेगा, आप ये नहीं कह सकते एमएसएमई को मिलना बहुत मुश्किल है। मैं ये कह रहा हूँ कि जर्नी है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन एफआईआई सबसे आगे है एमएसएमई के लिए कि ये कैसे ये नई गाइडलाइंस, नए टूल्स कैसे एमएसएमई की लैंडिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो जो एक एमएसएमई है उसके लिए जैसे आरबीआई ने पॉलिसीज अपडेट की हैं उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और या एनबीएफसी के लिए कि एनबीएफसी अनवांटेड चार्जेस ना लगाए या एनबीएफसी उनके लिए एक आसान तरीका दे लोन का। तो इसमें आप बीइंग एफआईआई एडवाइजर फाइनेंस एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस कमेटी, आप क्या क्या इनिशिएटिव लेते हैं अब एमएसएमई के लिए? देखिए, जो आपने भी बोला था कि एमएसएमई को चैलेंज आता है वो बिजनेस करें या डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, एफआईआई की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा कि एमएसएमई समाधान पोर्टल इज देयर फॉर रेजोल्यूशन द कंप्लेंट्स ऑफ एमएसएमईज, बट समाधान कितना प्रैक्टिकल काम कर रहा है उसके ऊपर एफआईआई भी काम कर रहा है। उसके अलावा आरबीआई ओम्बुड्समैन स्कीम्स है, वहां पे भी आप अपना दे सकते हो समाधान की। देखिए, बीइंग एन रिप्रेजेंटेशंस कम फ्रॉम एमएसएमईज एंड दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, बट वो प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसमें भी गाइड करती है एफआईआई की ये कमेटी कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती, कोई आ रही है तो आप बताइए। कुछ चैलेंजेस हैं, पॉसिबली मे बी आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया है या फिर आपको क्यों रिजेक्शन हुआ है, तो उन सबको लीगल डिस्प्यूट में ना ले जाके एक एक जरिया है कि आसानी से सुलझाया जा सकता है गवर्नमेंट से बात करके, थ्रू बैंक्स, थ्रू एनबीएफसी, और टेकिंग बैंक्स और मे बी टेकिंग बैंक्स एंड आरबीआई टुगेदर, बिकॉज को लेंडिंग के अंदर बैंक भी इन्वॉल्व होगा। तो ये काफी सारी चीजें हैं जिसपे काम कर रहे हैं, काफी सारे रिसर्च पेपर भी हम निकाल रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखोगे कि को लेंडिंग मॉडल कैसे हेल्प कर सकता है
और कैसे एक बैंक और एनबीएफसी मिलके लिटिगेशन भी कम कर सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ई प्लेटफॉर्म्स भी आ रहे हैं, ऐसी एप्स भी आ रही हैं कि आप ऑनलाइन जाके अपना डिस्प्यूट रिजोल्व कर सकते हो। तो इन सबको हम एजुकेशन अवेयरनेस एमएसएमई तक पहुंचा रहे हैं और आगे और भी पहुंचाएंगे। Mr. Kumar, how has the formalization of MSMEs under Udyam helped with credit access? This is again, I will say, future outlook question, that how Udyam Aadhaar can help. Udyam Aadhaar is a registration given to the proprietors of MSMEs, or through proprietors Aadhaar you can get the MSME certificate, that is Udyam Aadhaar. इंडिया में रिटर्न्स भी आ रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न 10 करोड़ के आसपास अभी भरी जाएंगे, या 11 करोड़ मैक्सिमम, 9 करोड़ तो हमने अचीव कर लिया था पिछले साल। सिमिलरली उद्यम आधार का अगर जितना रजिस्ट्रेशन होगा, 7-8 करोड़ के करीब एमएसएमईज हैं करीबन, जो पेपर पे दिख रहे हैं, जो गवर्नमेंट भी बता रही है, अभी रजिस्ट्रेशन 2 करोड़ 3 करोड़ इतना बता रहे हैं सब। जितना ज्यादा रजिस्ट्रेशन होगा, गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग ऑलरेडी इन प्रोसेस यूनिक लैंडिंग इंटरफेस, यूएलआई, इट्स लाइक अ यूपीआई। तो उसके ऊपर भी एफआईआई कमेटी काम कर रही है कि जल्दी से जल्दी, जब ये पूरी रूप से रोल आउट होगा, अभी टेस्टिंग फेज में है कई बैंकों के साथ, आपका सारा का सारा डेटा इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, जो आपकी रूरल एरिया में प्रोप्राइटर्स की कई फार्म लैंड है, कोई अलग प्रॉपर्टी है, उसका भी रिकॉर्ड वहां पे होगा, आपका आईटीआर का भी रिकॉर्ड वहां पे होगा, आपके सारे रिकॉर्ड वहां पे होंगे, डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम होंगे। तो मुझे लगता है कि अगर जितने ज्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे, उतने ज्यादा कम डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे, उतना जल्दी लोन मिलेगा। उन सब के ऊपर भी, यूएलआई के ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट भी काम कर रही है, और एफआईआई की बैंकिंग एंड फाइनेंस कमेटी भी अपने रोल आउट कर रही है रिप्रेजेंटेशंस एंड आर्टिकल्स ऑल्सो, दैट हाउ इट कैन बी बेनिफिशियल। इसका मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर का। बजट में पहला फर्स्ट पिलर एग्रीकल्चर को बताया था, दूसरा एमएसएमई को बताया था। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला था कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कई तरीके की होती है, इक्विपमेंट्स भी। हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ जो है, प्रोडक्शन बहुत कम है एज कंपेयर टू यूएस अमेरिका। अगर वो 3x प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम 1x कर रहे हैं। तो ये अगर आ रहा है, अगर वहां, अगर उसका सारा रिकॉर्ड जो एग्रीकल्चर में आना चाह रहा है, एंटरप्रेन्योर, प्रोप्राइटर, एमएसएमई पे रजिस्टर हो रहा है, उसका सारा रिकॉर्ड वहां पे आ रहा है, उसका प्रॉपर्टी डिटेल्स आ रहा है, तो कोई लेंडर एनबीएफसी मना नहीं करेगा, कोई बैंक भी शायद मना नहीं करेगा। तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी गुड स्टेप्स कि ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, और जल्दी बढ़ जाए तो और अच्छा होगा, क्योंकि यूपीआई की तरह यूएलआई भी आ जाएगा विद इन वन स्टॉप सॉल्यूशन। एक बटन के ऊपर ही लोन मिल गया, और रिकॉर्ड्स भी चेक हो गए। दूसरा, इस पे मैं आपके पास थोड़ा सा समय है तो बता देता हूँ जी। कि दूसरा जो डिमांड सप्लाई का गेम है एमएसएमईज के लिए, उनको मालूम ही नहीं है डॉक्यूमेंट देखने हैं नहीं देखने हैं, बार बार हर बैंक के पास जाते हैं, हर एनबीएफसी के पास जाते हैं। एनबीएफसी तो बहुत कम टाइम लेती है, बैंक थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं, बट बार बार जाना, बार बार लोन लेना, तो इट्स लाइक ना वेरी कम्बरसम प्रोसेस की बिजनेसमैन को बहुत दिक्कतें आती हैं। तो एक आरबीआई ने 2016 से लॉन्च करना स्टार्ट किया, और अभी भी पिक ही हो रहा है ये मेरे हिसाब से। मैं कहूंगा ये तो स्टॉक एक्सचेंज आ गया, अपना इनवॉइस रेज किया, इनवॉइस डाला ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म पे, इस ट्रेड प्लेटफॉर्म की, वहां से सीधा वो इनवॉइस चला गया। इनवॉइस किसके पास गया? जिसको जनरेट किया, आप एक्सेप्ट करो, मैंने इनवॉइस किया, अब आपके पास इनवॉइस पेमेंट तो 60 दिन में आएगी, लेकिन लेंडर कहाँ है? लेंडर के लिए तो जाना पड़ेगा। बट एक बार रजिस्टर करा लिया, वहीं पे बहुत सारे लेंडर भी मिलते हैं, कोई डिस्काउंट कर देगा आपका बिल का। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट दिस स्टॉक एक्सचेंज काइंड की जस्ट रेजिंग अ फैक्टरिंग यूनिट, जिसको बोलते हैं, इनवॉइस को फैक्टरिंग यूनिट रेज करो, 2 दिन में पैसा लो। तो ये सब समाधान, इसकी अवेयरनेस बहुत गवर्नमेंट भी कर रही है और एफआईआई भी कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। पर ये सब चीजें पहुंचेंगी कब? जब सारे रिकॉर्ड्स उद्यम आधार पे होंगे, या फिर गवर्नमेंट के पास होंगे, और वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करेंगे। उनकी जो जो लीगल ग्रीवांसेस आती हैं और कुछ इश्यूज आते हैं, वो इमीडिएटली सोल्व करेगा वो प्लेटफॉर्म। इट्स लाइक अ स्टॉक एक्सचेंज। जी। Thank you, sir. तो सुमेश जी, सवाल तो बहुत हैं, इसके लिए मुझे लगता है हमें एक और एपिसोड करना पड़ेगा, जैसे आपने यूएलआई के बारे में मुझे बताया, है ना। तो
यूएलआई के ऊपर भी हमें एक एपिसोड और करना पड़ेगा, तो वो हम सही। आगे करेंगे। तो आज अभी जाने से पहले आप हमारे एमएसएमईज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? 30% GDP is contributed by the MSMEs. 45% employment is given by the MSMEs. और ये नंबर मेरे हिसाब से बढ़ता जाएगा। ये सब तो मार्केट में आ रहा है। इसका मूल कारण ये है कि आत्मनिर्भरता। एम्प्लॉयमेंट आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन आत्मनिर्भरता हमें लेके आनी है हर किसी के पास। हर एंटरप्रेन्योर दिखना चाहिए, काम करना चाहिए उसका एज एंटरप्रेन्योर। मेरा जहां तक आकलन है, जो मैं अपना ये पर्सनल व्यू हूँ एज एडवाइजर ऑफ एफआई, एग्रीकल्चर में बहुत एमएसएमईज की अभी बहुत पोटेंशियल है। हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स अभी भी बहुत बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि इतने इक्विपमेंट्स हम बना सकते हैं हेल्थ केयर में। अभी भी सब बाहर से आ रहे हैं। एमएसएमईज का नंबर बढ़ेगा, क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होगी, लैंडस्केप बड़ी होगी। दैट इज ऑल पर्पज ऑफ दिस एफआई पॉडकास्ट। नंबर लास्ट, डिफेंस ऑलरेडी टॉकिंग एवरीवन। डिफेंस में इक्विपमेंट्स आ रहे, सर्विसेज आ रही, सेमीकंडक्टर्स आ रहे। इसके अलावा भी बहुत सारा पोटेंशियल है, क्योंकि 10 करोड़ लोग ही तो आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो एवरी विलेज, एवरी स्मॉल टाउन हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए, प्लेटफॉर्म्स पे आ जाए, उद्यम आधार के थ्रू आ जाए, यूएलआई के थ्रू आ जाए। और ये जितने ज्यादा रिलैक्स होंगी, इजी होंगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और बढ़ाएगी, क्योंकि 2047 तक विकसित भारत करना है। तो ये समय थोड़ा सा लगेगा, लेकिन बीइंग ए प्रोएक्टिव अप्रोच, एफआईआई इज वर्किंग। एज एडवाइजर आई एम सेइंग आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड अदर मेंबर्स आल्सो अवेलेबल। आपने आज जो भी क्वेश्चंस थे वो तो आंसर किए, पर आपने बहुत सारे मैं बोलूंगी हुक्स छोड़े हैं व्यूअर्स के लिए, कि नई नई चीजों के बारे में जो आपने बीच में थोड़ा 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 बात करके, मतलब वो इंटरेस्ट एक बना रहेगा, आई एम श्योर। तो दोस्तों, आज का उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। सुमेश जी ने बहुत सारे इंसाइट्स दिए हमें, बहुत सारे हमें एनबीएफसीज के बारे में बताया, आगे एमएसएमईज के सॉल्यूशंस के बारे में बताया, कैसे लोन को इजी किया जा सकता है, डॉक्यूमेंटेशन को इजी किया जा सकता है। और उन्होंने एक बात और की, यूएलआई पॉलिसी के बारे में, जिसके बारे में हम आने वाले समय में एक और एपिसोड करेंगे, क्योंकि यूएलआई अपने आप में एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। तो हम वो नेक्स्ट एपिसोड करेंगे। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी ऐसा आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या कोई भी आपका सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं एनबीएफसी से रिलेटेड, लोन, एमएसएमई स्कीम्स के रिलेटेड या एमएसएमई लोन्स के रिलेटेड, आप हमारी वेबसाइट पर या हमारे ईमेल पर मेल कर सकते हैं। सुमेश जी के साथ हम एक और एपिसोड करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब देने की उसमें कोशिश करें। तब तक के लिए नमस्कार सर। Thank you so much for joining us today. Tell us in the comment section how you liked our today's episode. Leave us comments about your questions, thoughts, and feedback. Do catch us live next week on Thursday at 6 p.m. on YouTube and Facebook. For regular updates, stay connected with us and subscribe to our channels. See you next week.